Students, welcome to S Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. Today I am going to explain you the second story which is prescribed in your book, The Footprints Without Feet. The name of the story is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. So before starting the story, I'll explain you something about the author. I'll let you know something about the author. So Ruskin Bond, as I told you, is the writer of this story. So Ruskin Bond was, or you can say is even, a famous Indian writer in English. So he is an Indian English writer. He was born on 19th May 1934, and Ruskin's father was with the Royal Air Force. At the age of 10, it is a very remarkable thing to know. At the age of 10, Ruskin started living with his grandmother in Dehradun after his father's death in 1944. He spent 4 years in London where he started writing his first novel. The name of the novel is The Room on the Roof. From here only, Ruskin Bond is now recognized as a leading writer in English, particularly known for his short stories. He currently lives in Lando Mashuri's Ivy Cottage, which has been his residence since 1964. तो ये था रस्किन बॉन्ड के विषय में कुछ जानकारी, यानी कि वो अभी रह रहे हैं, मसूरी में रहते हैं, आईवी कॉटेज में रहते हैं, और कब से रह रहे हैं? 1964 से रह रहे हैं. Now I'd like to let you know the theme of the story. What is the theme of the story? So that it will be very easy to listen and understand the story. Ruskin Bond's The Thief's Story is more than a thief story. You can say is more than a thief's story. Why? Because the story deals with basic human values and relationships. It is easier for a thief to rob a greedy man. ऐसा होता है? चोरी करना तो आसान है, किसी भी व्यक्ति को चोरी कर लेना, लेकिन यहां पर इस स्टोरी में क्या दिखाया जा रहा है कि एक बेसिक ह्यूमन जो वैल्यूज होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं उसको भी साथ साथ दिखाया गया. सो डेफिनेटली इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी. It is difficult even for a thief to rob a careless and honest person. Just imagine. Now, here is the character, Hari Singh. So, what he did? Hari Singh did steal Anil's money. So, Hari Singh is a thief and he did steal Anil's money. Anil is another character, but he couldn't run away with it. चोरी तो किया, लेकिन उसका चोरी किया, अनिल का चोरी किया, लेकिन भाग नहीं सका. He had no friends because he regarded them to be trouble than help. The only person he really knew was the man he had robbed. क्योंकि चोर का कोई दोस्त नहीं था और अंत में उसको लगा कि मेरे पास एक ही आदमी है जिसका मैंने चोरी किया. Moreover, Anil was ready to educate Hari Singh. और इससे भी ज्यादा, जबकि चोरी हुआ है फिर भी अनिल तैयार है उसको पढ़ाने के लिए. The thief's conscience pricked him. He came back to Anil and crept to his bed. He slipped the money under the mattress from where he had stolen it a few hours ago. वो आता है और फिर से उसी जगह पे जहां से पैसे चुराए तो वहां रख देता है. जस्ट इमेजिन कितनी सुंदर स्टोरी होगी कि एक चोर चोरी करके और फिर उसका जो धन है उसको लौटा भी देता है. Now I am going to explain the story, but before explaining, in a box something is written. You might see in your book, आप देख सकते हैं. It is written, a young boy makes friends with Anil.
Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? अब यहां पे क्या मतलब हुआ कि एक नवयुवक लड़का होता है, वो अनिल से दोस्ती करता है, फिर अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है, उसको नौकरी पे भी रख लेता है, एम्प्लॉय से। अब यहां पर है कि क्या हुआ, लड़का नवयुवक जो अनिल के भरोसे को तोड़ता है या रखता है, ये प्रश्न अब रह गया। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, एंड अगेन देयर इज समथिंग रिटन हियर, रीड एंड फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो मैंने आपको थीम थोड़ा सा सुनाया था, तो डेफिनेटली आई इज हरी हियर, who is a young boy and who is a thief. Next point is, what is he a fairly successful hand at? यानी कि वह किस काम में काफी सफल था। A fairly successful hand का मतलब किस काम में काफी दक्ष था या सफल था। तो किस चीज में था? स्टीलिंग मनी में, और नहीं पकड़े जाने में दक्ष था कि he used to steal money and for not being caught so far, अब तक नहीं पकड़ा गया। फिर क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो अपना जो कार्य था, चोरी करने का कार्य जो था, और जिसने अनिल के पैसे चुराया था, उसके बदले में उसको क्या मिला? उसको मिला क्या? अनिल ने उसको खाना दिया, फूड दिया, रहने का दिया, एकोमोडेशन दिया उसके काम के बदले में, और अनिल ने उसको सिखाया भी कैसे अपना नाम लिखा जाए, कैसे नंबर्स जो होते हैं उसको पढ़ा जाए, ये सारा कुछ बताया। यू विल गेट दिस आइडिया व्हेन यू विल गो थ्रू द स्टोरी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। ठीक है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। बोलता है कि मैं उस समय भी एक चोर था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मैं सिर्फ 15 साल का था, 15 वर्ष का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन मैं काफी अनुभवी और सफल चोर था। ये कौन बोल रहा है? हरी बोल रहा है। हरी इसका नाम, इस चोर का नाम है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके घर में घुसा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। जब मैं उसके पास गया तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। He was about 25, वह लगभग 25 साल का था। A tall, lean fellow, एक लंबा सा दुबला पतला सा व्यक्ति था। And he looked easy going, और वह बहुत easy going का मतलब होता है जो बिल्कुल केयर फ्री रहे या बेपरवाह जैसा रहे। तो इजी गोइंग था, केयर फ्री रहता था, वो है कि बेपरवाह रहता था। और क्या था? काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरा जो उद्देश्य था, मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही साधारण व्यक्ति लगता था और बहुत ही दयालु व्यक्ति लगता था। क्योंकि चोर जो है उसको अगर ऐसा आदमी मिल जाए कि बहुत लापरवाह जैसा मिल जाए, बेपरवाह जैसा मिल जाए, बहुत दयालु आदमी मिल जाए और बहुत ही ईमानदार आदमी मिल जाए, साधारण सा आदमी मिल जाए, तो चोर को चोरी करना आसान हो जाता है। इसलिए यहां पर हरी जो चोर है वो इस बात को बोल रहा है जब उसके घर में गया तो। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो क्या हुआ कि काफी दिनों से तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया था और मैंने सोचा कि मुझे इस नवयुवक का विश्वास जीत लेना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहां इन्वर्टेड कॉमा में है, थोड़ा कन्वर्सेशनल है, ध्यान दीजिएगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने कहा, आप स्वयं भी एक पहलवान जैसे दिखते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी करने का मतलब चापलूसी करना, बटरिंग करना। तो मित्रता करने में थोड़ी चापलूसी बड़े काम आती है, ऐसा वो सोच करके हरी ऐसा बोला। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और वो भी जवाब दिया, यानी कि जिसके घर में चोरी किया उसका नाम क्या था? अनिल था। वो भी जवाब दिया,
कि तुम भी वैसा ही दिखते हो। उसने जवाब दे दिया, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. मैं एक पल के लिए डर गया क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला था। I said modestly, well, मैंने भी बड़ा विनम्रता से, modestly मतलब बहुत ही humbly, मैंने भी बहुत विनम्रता से जवाब दिया, I do wrestle a bit. मैं थोड़ी बहुत कुश्ती भी कर लेता हूं। अब अनिल ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या नाम? आई लाइड, मैंने झूठ कहा, हरि सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस तथा अपने जो पहले के जो हमारे एम्प्लॉयर्स थे, जो नियुक्ति करते हैं, नियोक्ता जिसको बोलते हैं, उनकी पकड़ से मैं दूर रखना चाहता था आपको, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की जो गरज रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे, यानी कि क्रिएटिंग साउंड, गटरल साउंड, घरघराने की आवाज, और एक दूसरे को क्या कर रहे थे, उठा उठा करके पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, और अनिल दूर जाने लगा और मैं भी चुपके से उसके पीछे चल दिया। कैजुअली, चुपके से उसके पीछे चल दिया। He said hello again. उसने मुझे हेलो कहा फिर से, तो फिर मिल गए, ऐसा वो बोलने की कोशिश किया। I gave him my most appealing smile. Appealing मतलब attractive, आकर्षक। तो मैंने भी उसकी तरफ अपनी सबसे आकर्षक जो है मुस्कुराहट की जो मुद्रा होती है उसमें अपने आप को दिखाया। I want to work for you, I said. और मैंने कहा कि मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूं, कुछ काम करना चाहता हूं। बट आई कांट पे यू, लेकिन जवाब मिला, लेकिन परंतु मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, वेतन नहीं दे सकता, तनख्वाह नहीं दे सकता। किसने कहा? अनिल ने कहा। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मिसजज का मतलब कि गलत ओपिनियन लेना, गलत अनुमान लगाना, मिसजजिंग का मतलब। तो मैं थोड़ी देर तक इस पर विचार करता रहा, शायद मैंने गलत आदमी तो नहीं चुन लिया था। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? मैंने उससे पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं? तो अनिल ने बोला, कैन यू कुक? क्या तुम भोजन बना सकते हो, खाना पका सकते हो? आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला। आई कैन कुक। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो क्या झूठ बोला? मैंने दोबारा झूठ बोला कि मैं भोजन पका सकता हूं। यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें भोजन करा सकूं, ऐसा उसने बोला। He took me to his room over the Jumna sweet shop. कहीं कहीं पे इसको जमुना भी बोलते हैं, तो जमुना या जुमना कोई बात नहीं है। And told me I could sleep on the balcony. तो वह मुझे जमुना स्वीट शॉप ले गया, कि ऊपर में ले गया और अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकोनी में, छज्जे पे सो सकता हूं। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. लेकिन परंतु उस रात जो खाना मैंने बनाया वह इतना बुरा बन गया था, वह अवश्य ही इतना बुरा बन गया था, क्योंकि अनिल ने सारा खाना गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम भाग जाओ यहां से। बट आई जस्ट हंग अराउंड,
हंग अराउंड का मतलब आसपास में घूमता रहना, अपना टाइम व्यतीत करता रहना। लेकिन मैंने क्या किया, हंग अराउंड किया, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो कि उसकी आदत थी, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो मैंने उसको अपनी मुस्कुराहट की अदा के साथ उसके आसपास ही मंडराता रहा और वह अपनी हंसी भी नहीं रोक पाया मेरे को देख करके। Later he patted me on the head. बाद में उसने मुझे सिर पे थपथपाया। पैटिंग करना मतलब थपथपाना, टैपिंग करना। बाद में उसने मेरे सिर पे थपकी दी, थपथपाया। और क्या हुआ, और बोलता है एंड सेड नेवर माइंड, और कहा क्या कि कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. यही नहीं, उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया और कहा कि वह मुझे जल्दी ही, शीघ्र ही पूरे वाक्य को भी लिखना तथा संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा, ऐसा उसने बताया। I was grateful. तो अब क्या हुआ कि जब इतनी सारी चीजें हुई तो मैं उसका आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि यदि मैं एक बार किसी साक्षर आदमी के समान पढ़ना लिखना सीख लिया तो मेरी कमाई की कोई अंदाजा नहीं होगा, कोई सीमा नहीं रहेगी। It was quite pleasant working for Anil. और अनिल के लिए काम करना काफी सुखद था, खुशी का चीज था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. तो मैं सुबह का चाय बनाता था और तब मैं अपना समय जो रोज की, जो दैनिक जिसको बोलते हैं, रोज की जो जरूरत की चीजों को खरीदने में व्यतीत करता था अपना। Usually making a profit of about ₹1 a day. और चूंकि मार्केट मैं जाता था, रोज के सामान को मैं खरीद के लाता था, तो ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से लाभ भी कमा लेता था। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. और मुझे कभी-कभी लगता था कि वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे बना रहा था, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि वह इसको बुरा मानता था। ऐसी बात थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो होता था रोज रोज पैसे नहीं बनाता था। फिट्स एंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब कि नॉट रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से नहीं, है ना, नियमित रूप से नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक। स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा स्लिप कर गया था, अभी फिर से मैं बोल रहा हूं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है वो पैसे जो है वह नियमित रूप से नहीं बनाता था। He would borrow 1 week, lend the next. और वह क्या करता था कि वह एक सप्ताह उधार लेता था तो अगले सप्ताह उसे चुका देता था। He kept worrying about his next check. और वह अपने चेक को लेकर के हमेशा चिंतित रहता था। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. और जैसे ही चेक आता था वह बाहर जाता था और खूब खुशियां मनाता था, जश्न मनाता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. और ऐसा लगता था कि जैसे वह कोई जो पत्रिकाएं होती हैं, जो मैगजीन्स होता है, उसके लिए लिखता था और इसी से आजीविका जो है, अपनी सर्वाइवल जो है, अपनी जो लिविंग है उसको चलाने का उसका एक क्वियर वे था। क्वियर वे का मतलब कि एक बहुत ही स्ट्रेंज वे था, यानी कि बहुत ही अद्भुत तरीका था उसका। यानी कि अनिल के पास पैसा रोज रोज नहीं बनता था, अनियमित रूप से आता था, कभी कभी आता था, तो वो पैसे लेता था फिर किसी को देता था, ऐसा काम चलाता था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन शाम को वह रुपए की एक छोटी सी गड्डी लेकर के घर आया और बताया कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक पुस्तक बेची थी। At night I saw him tuck the money under the mattress. Tuck का मतलब keep,
किसी चीज से दबा करके, अंदर नीचे दबा के रखना, यानी कि कीपिंग अंडर फोल्डर और समथिंग लाइक दैट। तो रात में मैंने क्या देखा कि मैंने उसे गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे पैसे को दबाकर रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, और मैं अनिल के लिए कार्य करता था और लगभग 1 महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और थोड़ी सी चीटिंग भी करता था। तो अब यहां पर क्या था कि और खरीदारी करते समय की जाने वाली जो धोखेबाजी के अलावे हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो वह अपने पेशे का जो, उसका पेशा था क्या, चोरी करना। जो चोरी करने का जो पेशे के अनुरूप कोई काम और वो नहीं करता था, सिर्फ बाजार जाता था, थोड़े बहुत पैसे वो 1 रुपया पर डे के हिसाब से बनाता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, इसलिए मेरे पास ऐसा करने का पूरा अवसर था, यानी कि बड़ी चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ट्रस्टिंग मतलब विश्वासी, हैविंग फेथ। मैं अब तक जितने भी लोगों से वह मिला था उसमें सबसे, अनिल उन सभी में सबसे सर्वाधिक भरोसेमंद व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसे लूटना भी बड़ा मुश्किल लगता था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, लालची आदमी को लूटना तो बहुत आसान होता है, सरल होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटना सहन भी कर सकता है, क्योंकि वह लालची है, कहीं से लूटा है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक असावधान आदमी जो होता है उसको लूटना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क। और कभी कभी तो यह ध्यान भी नहीं देता है वह अनिल कि वह लूट चुका है, और इस बात से काम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और फिर बोलता है हरी कि हाँ अब समय है कि मैं कुछ रियल वर्क, वास्तविक काम करूं। क्या वास्तविक काम क्या है? बड़ी चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मेरा अभ्यास भी छूट गया है चोरी करने का। मैं तो यहाँ बिल्कुल आकर के एक बिल्कुल फ्रेंडली हो गया हूँ, घर जैसा हो गया हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसा नहीं चुराया, टेक द मनी का मतलब चुराने यहाँ पे, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इन्हें अपने मित्रों पर व्यर्थ कर देगा, यानी फालतू चला जाएगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और मैं इतना घर में काम करता हूँ, रहता हूँ, तो वह मुझे वेतन भी तो नहीं देता है। ऐसा सोच करके वह उसको, अनिल को चोरी करने के लिए, उसके मैट्रेस के नीचे दबे पैसे को चोरी करने का योजना बनाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आफ्टर दिस देयर इज written, read and find out, and it means that there are some questions. How does the thief think Anil will react to the theft? अनिल चोर जो है, अनिल की प्रतिक्रिया के बारे में क्या सोच रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। फिर लूट जाने के बाद अलग अलग लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया होती है, सिंपल मैन कैसे, ग्रेडी मैन कैसे, केयरलेस मैन कैसे सोचेगा, वो उसके विषय में क्वेश्चन है। ये आप करेंगे खुद से, क्योंकि मैंने समझाया है इसको बहुत अच्छे से। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को यह महसूस होता था या वो महसूस किया कि वह लूट गया है। सो these three questions are already in your first part of the story, and I hope you will do it. I'll come with the second part of the story in the next session. Thank you.